پاکستان کی اکانومی کے نمبرز امپروو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کی ریسنٹ ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے حالیہ اناؤنس کی گئی مانیٹری پالیسی میں جو انٹرسٹ ریٹ کا سٹانس ہے اس کو اسٹیٹس کو پہ جو ہے وہ مینٹین کیا گیا. مگر جو عالمی ادارے ہیں جس میں S&P جیسے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے اس وقت بھی پاکستان میں موجود جو انفلیشن کا خطرہ ہے اس کے اوپر اب بھی جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان تمام تر انفلیشن کے جو اس وقت اسباب ہیں اس کا حالیہ دنوں میں اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کی اکانومی پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں S&P گلوبل سے. ہی ہمارے ساتھ احمد مبین موجود ہوں گے. احمد ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اچھا احمد یہ بتائیں کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایک اسٹانس اپنایا گیا کہ جس میں مانیٹری پالیسی کو مینٹین کیا گیا ہے اپنے اسٹیٹس کو کے اسٹیٹس پر, مگر آپ کی جو رپورٹ ہے S&P کی وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت انفلیشن کا جو خطرہ ہے وہ موجود ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ کے مطابق پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک ماڈریٹ ریکوری کے فیز میں ابھی آ چکی ہے. اس میں 3 چیزوں نے اس کو ہیلپ کیا. ایک آپ کی جو فسکل ایڈجسٹمنٹس تھیں اس نے اوور آل آپ کی جو شارٹ ٹرم پالیسی کریڈیبلٹی ہے اس کو امپروو کیا ہے اور آپ کی جو نیئر ٹرم ڈیفالٹ رسک ہے اس کو منیمائز کیا ہے. پھر آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ انفلیشن چونکہ ہائی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اپروپریٹلی ٹائٹ سٹانس رکھا گیا جس نے آف کورس آلسو ہیلپ کیا آپ کی مانیٹری سیکٹر سے. اور تھرڈ جو ہے آپ کے IMF پروگرامز کے انڈر آپ کے ریفارمز فسکل سائڈ پہ کنٹینیوڈ رہے. اور ان تینوں کا آپ ریزلٹس اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ریئل GDP جو تھی پاکستان کی وہ اس گزشتہ فسکل ایئر میں 3.7% گرو کی اور وہ ایک کلیئر امپروومنٹ تھی اوور دا پاسٹ 2 ایئرس جس میں 3.2% لاسٹ ایئر تھی اور 2.6% اس سے پچھلے سال تھی. اسی طرح اگر آپ فسکل سیکٹر کو تھوڑا اور ڈیپ دیکھیں تو جو ایک ریٹرن کیا پاکستان نے پرائمری سرپلس کی اوپر 2024 کے فسکل ایئر میں اور اس کو مینٹین رکھا ابھی تک 2026 کے فسکل ایئر تک, اور آگے ہماری پروجیکشن یہی ہے کہ وہ پرائمری سرپلس IMF پروگرامز کے انڈر کنٹینیوڈ رہے گا. اور یہ ایک شفٹ ہے, اسٹرکچرل شفٹ ہے پچھلے آلموسٹ 2 ڈیکیڈ سے, جس میں ایک پرزسٹنٹلی لارج آپ کے فسکل ڈیفیسٹس رہتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائل یہ ایک انکریجنگ ڈیولپمنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو سسٹین کرنا ہے اس ایڈجسٹمنٹ کو, وہ آپ کو اس کے لیے ریکوائر ہوگا کہ آپ کنٹینیو کریں آپ اپنی سبسڈی کی ریشنلائزیشن, آپ اپنی انرجی سیکٹر کے ریفارمز اور اپنی ڈیولپمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرس ہیں اس کے کٹس. اس کی وجہ سے ایک جو رسک وہ کیا ہوگا کہ آپ کا کاؤنٹر سکلیکل فسکل سپورٹ جو ہے لائک سپورٹ when the country will be under elevated pressure, وہ آپ کا روم کم ہوتا نظر آئے گا کیونکہ آپ کے IMF پروگرام کے انڈر آپ نے فسکل کنسولیڈیشن کو کنٹینیو رکھنا. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہائر ڈیفنس اسپینڈنگ گیون کہ جو اوور آل گلوبل ڈیولپمنٹ گلوبل جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس میں یہ ریکوائرڈ ہے آلموسٹ فرام آل میجر اکانمیز دیٹ دیئر ڈیفنس ایلوکیشنز ول بی ہائی. اور پھر آپ کا جو انٹرسٹ کاسٹ ہوگی آپ کی اپنی فائنینسنگ پہ وہ ایلیویٹڈ رہے گی, آپ کی جو ڈیٹ سروس ہے وہ ریکرنگ رہے گی, اور اس کی اوبلیگیشنز کی وجہ سے آپ کی جو جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ڈسکریشنری اسپینڈنگ اسپیس فار ڈیولپمنٹ, فار ہیلتھ, فار ایجوکیشن اور سوشل پروٹیکشن وہ آپ کی کم رہے گی. اچھا ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پرولونگ وار ہے جو سچویشن نظر آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں, گلف کا ایک پورا سینیریو ہے جس کی وجہ سے آئل پرائزز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امپیکٹ ہے جو کہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے. اور ساتھ گلوبلی ایک ایسا فنومینا النینو ایفیکٹ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان پہ ہمیں جو ہے وہ خاصا امپیکٹفل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ان دونوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے پاکستان میں حالیہ دنوں میں اور آنے والے وقتوں میں جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے, ویٹ کی جو صورتحال ہے, شوگر کی ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال, جو ہماری پروڈکشن ہے, یہ تمام تو چیزیں متاثر ہو رہی ہیں, کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے انفلیشن کا اس کے اوپر؟ ہماری مارکیٹ انٹیلیجنس کی بھی پروجیکشن یہی ہے کہ انٹرمیڈینٹ طور پہ جو ملٹری کنفرنٹیشنز ہیں دے آر لائکلی ٹو پرسسٹ, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے مارکیٹ, آپ کی انرجی پرائسز, آپ کی سپلائی چینز وہ ڈسرپشنز پہ ایکسپوز رہیں گی کنٹینیوسلی گوئنگ فارورڈ. تو اس کا ریزلٹ جو ہے آپ کے آف کورس اگر ٹرانسمیشن چینل کی بات کریں کہ کیسے اس کا ٹرانسمیشن چینل پاکستان پہ آتا ہے, تو وہ یہ ہے کہ آپ کی انرجی سائڈ جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آئے گا اسپیشلی فار کنٹریز لائک پاکستان جہاں پہ آپ کی امپورٹیڈ انرجی پہ ڈپینڈنس زیادہ ہے. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں 4 میجر فگرز دیتا ہوں, 100%, 90%, 70% اور 60%.
पाकिस्तान ऑलमोस्ट अपना 100% क्रूड ऑयल, 90% डीजल, 70% गैसोलीन और 60% नेचुरल गैस वो मिडिल ईस्ट रीजन से लेता है। तो उसकी डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट वॉर का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन साइड पे ज़्यादा है। और इमीडिएटली कैसे ट्रांसमिट होता है कि आपकी हायर फ्यूल कॉस्ट हुई, इंपोर्ट कॉस्ट, वो आपकी फीड की इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पे, आपकी फ्रेट चार्जेस पे, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग की इनपुट प्राइसेस पे। और फिर जैसा कि अमूमन होता है इन इकोनॉमीज ऑल ओवर के प्रोड्यूसर्स, इफ नॉट फुली देन पार्शली पास ऑन दीज प्राइसेस टू कंज्यूमर्स। और वो जब पास ऑन करते हैं एंड कंज्यूमर्स पे प्राइसेस, तो फिर हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर वो वीकन होती है फर्दर। और इस सिलसिले में हमने एक्चुअली एपैक रीजन पे अभी रिसेंटली S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने रिसर्च की थी, जिसमें हमने 17 मेजर एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज को लिया। और हमने देखा कि अगर मिडिल ईस्ट की वॉर सिचुएशन, वॉर सिनेरियो प्रोलॉन्ग्ड रहता है, लंबा रहता है, तो उस सिलसिले में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इकोनॉमीज कौन सी होंगी। तो हमारी रिजल्ट्स के मुताबिक वो 3 क्लस्टर्स बने इकोनॉमीज के, जिसमें स्टेडी इकोनॉमीज लाइक मेनलैंड चाइना हो गया, ताइवान हो गया, हांगकांग, इंडोनेशिया, जहाँ पे इम्पैक्ट उसका मिनिमल होगा, एब्जॉर्बेबल होगा बिकॉज फिजिकल बफर ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व ज़्यादा है। फिर मिडिल में इकोनॉमीज आती हैं जैसे कि स्क्वीज्ड इकोनॉमीज लाइक थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडिया, जहाँ पे उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा बोथ इन्फ्लेशन साइड पे, एक्सचेंज रेट साइड पे, और ओवरऑल डिमांड मॉडरेशन की साइड पे, लेकिन स्टिल उनकी फिजिकल पोजीशंस इतनी हैं कि वो विद स्टैंड कर सकेंगी विद इन द नियर टर्म। और थर्ड कैटेगरी जो हाईएस्ट रिस्क थी उसमें उसको हमने नाम दिया था स्ट्रेस्ड इकोनॉमीज का, और उसमें फिजिकली फ्रेजाइल इकोनॉमीज आती हैं ये सब कॉन्टिनेंट की, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। और सबसे जो टॉप पे रिस्क लेवल पे था वो पाकिस्तान था। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, पाकिस्तान रिमेन्स द मोस्ट एक्सपोज्ड इकोनॉमी टू अ प्रोलॉन्ग मिडल ईस्ट सिनेरियो। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इवन दो रिसेंटली ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें थोड़ा बहुत आपने रिकवरी देखी, लेकिन स्टिल रिस्क्स एलिवेटेड हैं वॉर के। और वो गोइंग फॉरवर्ड उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट सेकेंड राउंड इम्पैक्ट भी नजर आता रहेगा। अब इसको ओके। कंपाउंड एक क्या चीज कर रही है, इसको कंपाउंड कर रही है आपका एल नीनियो का शॉक, जो कि अभी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में और 2027 में वो हिस्टोरिक हाई लेवल पे एल नीनियो का शॉक आने वाला है। और उसकी वजह से पाकिस्तान जैसी कंट्री पे, जहाँ पे ऑलरेडी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, ओवरऑल इकॉनमी अभी एक इन्फेंसी स्टेज पे है अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, तो सच ए शॉक जो है वो एक डोमेस्टिक सप्लाई साइड स्ट्रेस भी क्रिएट कर सकता है। कैसे? उसका ट्रांसमिशन चैनल ऑफ कोर्स होगा कि आपका एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो इम्पैक्ट होगा, आपकी क्रॉप की यील्ड, आपका एरिया अंडर कल्टीवेशन, आपकी वाटर अवेलेबिलिटी, और ओवरऑल हायर फूड प्राइसेस वो एक अपसाइड रिस्क देंगी आपकी इन्फ्लेशन पे। सिमिलरली आपकी डिमांड साइड पे भी इशू पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वीकर यील्ड्स अगर हों, डिलेड प्लांटिंग हो, अगर आपकी फर्टिलाइजर, इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती हैं, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी आपकी रूरल इनकम्स पे और हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर पे। बिकॉज अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 1/5 उसका शेयर एग्रीकल्चर का है, और लेबर फोर्स में इट्स इवन हायर, 1/3 ऑफ द लेबर फोर्स जो है वो आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब्स या वर्क में मुलविस। अच्छा, अभी आपने खुद भी कहा कि आपको लगता है कि इन तमाम तर चीज़ों का इम्पैक्ट है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो बढ़ सकता है। तो फिर क्या हम ये देख रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2026 या फिर फाइनेंशियल ईयर 27 में कहीं स्टेट बैंक का जो स्टांस है उसमें तब्दीली आ सकती है, हम इंटरेस्ट रेट में हाइक देख सकते हैं, या पॉलिसी रेट में हम कोई ऐसी चेंजेस देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान पे फिर जो है वो हमें नज़र आए? जी बिल्कुल। सो गिवन दीज टू रिस्क्स, ठीक है, एक मिडिल ईस्ट का जो कंटिन्यूड इम्पैक्ट आ रहा है एंड एक जो पोटेंशियल आपका एल नीनियो का इम्पैक्ट आएगा, उसके मद्देनजर रखते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं दे टेंड टूवर्ड्स द साइड ऑफ कॉशन। वो वेट एंड सी अप्रोच यूज करते हैं, वो प्रीमेच्योरली या अर्ली ईजिंग की तरफ नहीं जाते। दे विल ट्राई टू सी ऑफ द इम्पैक्ट। और उसमें दो चीज़ें, एक ऑफ कोर्स बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी इज सपोज टू बी फॉरवर्ड लुकिंग, तो इवन दो ट्रेजेक्ट्री जो है वो एक प्रोग्रेस की तरफ या हेल्थ की तरफ पाकिस्तान की एक जो इकोनॉमिक नैरेटिव है वो जा रहा है, लेकिन स्टिल अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग नजरिया लें तो उसमें जो डाउन साइड रिस्क हैं ग्रोथ के, अप साइड रिस्क इन्फ्लेशन के, वो एलिवेटेड है।
सेकंड, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इटसेल्फ का जो ट्रांसमिशन लैग होता है, आपने इम्प्लीमेंट की लेकिन उसका रियल इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट आना वो अ, थोड़ा सा लंबा होता है. लाइक फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज इट टेक्स अप टू 3 months, 4 months, even 5 months to see the actual impact of your monetary policy, interest rate increase, for example, or interest rate decrease. तो उसकी मद्देनजर रखते हुए हमारी जो प्रोजेक्शन है वो यही है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, along with other similar peer developing economies, emerging and developing markets, वो एक wait and see approach यूज करेगा और अपनी monetary policy को appropriately tight रखेगा going forward. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये बताएं कि आपने ओवरऑल इन्फ्लेशन का हमें बताया, सूरत हाल इकॉनमी पे पाकिस्तान की, लेकिन एक प्रेशर और है जो कि एक्सटर्नल प्रेशर के तौर पे हम देखते हैं कि नज़र आता है। पाकिस्तान को बड़ी पेमेंट्स हैं जो कि करनी है, पे आउट्स हैं जो करने होते हैं, उसका कैसा ओवरऑल इम्पैक्ट देख रहे हैं, और पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इन पे आउट्स के बाद जो ओवरऑल एक्सटर्नल इम्पैक्ट है उसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आता है? अब लास्टली हम आ जाते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे और लिक्विडिटी के प्रेशर्स पे. तो उसमें भी इमीडिएट अगर आप नियर टर्म में देखें और रिसेंट प्रोग्रेस देखें तो वो डेफिनेटली हुआ है. स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मिड जुलाई में वो तकरीबन 17.2 बिलियन पे चले गए थे, हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक. और वो अगर आप कंपेयर करें फॉर एग्जांपल जनवरी या स्टार्ट ऑफ 2023 दे वर अराउंड 3.2 बिलियन. तो वो काफ़ी मटेरियल इम्प्रूवमेंट आई है. और इसमें जो मेजर सपोर्टिंग फैक्टर था वो ऑफ कोर्स आपका आईएमएफ का जो प्रोग्राम कंटिन्यू रहा. उसमें वी यूज दिस टर्म दैट पाकिस्तान वाज गिवन अ सील ऑफ अप्रूवल बाय बीइंग अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम, कि जब भी एक इकॉनमी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, जहाँ पे हाई कंजम्पशन रेट है और कंटिन्यूड बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रेशर्स होते हैं, जब तक वो आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर रहती है तो आपके जो एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स और फ्यूचर क्रेडिटर्स और फ्रेंडली कंट्रीज और जो आपके फर्दर लेंडर्स हैं, वो सारे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इस इकॉनमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते रहेंगे, एक प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड देन स्टेबिलिटी टुवर्ड्स रिकवरी वो जारी रहेगा. तो उसके जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो दे आर मोर विलिंग to either roll over your finances, to extend more credit, and to be just more willing to extend more financing. तो वो एक चीज़ नज़र आई. और सेकंड ऑफ कोर्स आपके जो वर्कर्स रेमिटेंसेस ने आपके करंट अकाउंट को काफ़ी शोल्डर किया. बल्कि अगर आप वर्कर्स रेमिटेंसेस की ग्रोथ देखें तो वो काफ़ी हाई हेल्दी रही है ओवर द पास्ट 2 years, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. लेकिन उसमें ऑफ कोर्स एक एम्बेडेड रिस्क फैक्टर भी है, बिकॉज ऑलमोस्ट अराउंड 40% आपके जो वर्कर्स रेमिटेंसेस इन दे आर सोर्स्ड और या ओरिजिनेटेड फ्रॉम गल्फ इकोनॉमीज, जो कि अगर मिडल ईस्ट वॉर में अगेन उनका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है. तो इन केस इन अ सिनेरियो वेयर उनकी इकोनॉमीज जो हैं वो इम्पैक्ट होती हैं ज़्यादा ड्यू टू मिडल ईस्ट वॉर, देन ऑफ कोर्स आपके रेमिटेंसेस के इनफ्लोज पे भी प्रेशर आ सकता है. और इन एनी केस इवन इफ वर्कर्स रेमिटेंसेस रिमेन स्ट्रॉन्ग, आपके ओवरऑल एक्सटर्नल बफर्स जो हैं वो स्टिल डिपेंडेंट होंगे आपके टाइमली बायलैटरल सपोर्ट पे, आपके कंटिन्यूड आईएमएफ के का जो प्लान्स हैं उस पे, और आपकी फ्रेंडली कंट्रीज थ्रू बोथ जो आपका रोल ओवर हो रहा है बायलैटरल डेट का और आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो डिपॉजिट्स आपके स्टेट बैंक के पास रखवाए जाते हैं टू बोस्टर रिजर्व्स. अब इस चीज़ में आपका जो फाइनेंसिंग रिस्क है वो ऑटोमेटिकली हाई रहता है. और हमारी प्रोजेक्शंस के मुताबिक इवन दो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है पाकिस्तान का वो 2026 से लेके 2030 तक का जो मीडियम टर्म सिनेरियो हम देखते हैं उसकी हमारी प्रोजेक्शंस के मुताबिक वो कंटेन रहेगा, जो कि आपके एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्रेशर्स को मिटिगेट करेगा. लेकिन स्टिल अगर आप देखें लिक्विडिटी गैप की जो हमारी फोरकास्ट है, that will be around 29% of your total foreign exchange earnings over the same period. मतलब जितनी भी पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी उसका अराउंड 30% आपकी फाइनेंसिंग गैप की इक्वल होगा. और इसकी वजह क्या होगी? मेनली आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो परसिस्टेंटली हाई रहेगा, स्पेशली अगर आपकी डोमेस्टिक डिमांड जो है रिकवर करती है गोइंग फॉरवर्ड और आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी है तो इंपोर्ट आपका बढ़ेगा. और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस आपका इंपोर्ट बिल्स वैसे भी बढ़ जाते हैं. और फिर द अदर साइड इसके आपके नॉन डेट जनरेटिंग इनफ्लोज लाइक
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, वो आपकी ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हैं या डिक्लाइन कर रही हैं। और FDI इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स नॉट जस्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, बल्कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो उससे आपकी इकॉनमी में भी लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आता है, बिकॉज आप उसकी वजह से एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको न्यू मैनेजमेंट के ऑपरेशनल मॉडल्स नज़र आते हैं, आप उससे सीखते हैं, आपकी स्किल्स गैप जो है उसका आपको अंदाज़ा होता है, ना सिर्फ एस्टिमेशन होती है बल्कि देन आपका वो जो टेक्नोलॉजी स्पिल ओवर है उससे आप सीख सकते हैं और आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ओवरऑल इम्प्रूव हो सकती है। तो इन ऑल दीज केसेस आपके जो नॉन डेट जनरेटिंग इन्फ्लोज हैं उसके ऊपर जो फोकस है पॉलिसी का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू फॉर योर टाइम।